My precious children of God, I'm so happy to see each one of you, and may the Lord bless you through His word right now. मेरे अनमोल बच्चों, मैं आप हर एक को देखने के लिए बहुत खुश हूँ। प्रभु आप हर एक को अपने वचन से अभी आशीष करे। Today for our meditation, the Lord has given us this verse. आज हमारे ध्यान के लिए प्रभु ने ये वचन हमें दिया है। Galatians chapter 3 verse 27. गलातियों अध्याय 3 वचन 27। For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। Verse 28 says, For you are all one in Christ Jesus. वचन 28 में लिखा है, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Romans chapter 6 and verse 6 says, Our old man was crucified with him on the cross, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. रोमियो अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। And verse 4 says, Therefore we were buried with him through baptism. और वचन 4 में लिखा है कि सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। And verse 11 clearly says, Likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. वचन 11 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। This is what happens when we take baptism. जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यही होता है। Galatians 2:20 Paul says, I have been crucified with Jesus. गलातियों 2:20 में पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। I was a sinful man, मैं एक पापी मनुष्य था, doing all sorts of wrong things. हर तरह के गलत काम करता था। But when I accepted Jesus as my Savior, He became my Savior. लेकिन जब मैंने यीशु को स्वीकार किया, वे मेरा उद्धार कर्ता बन गया। I've been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। Now Christ lives in me. अब मसीह मुझ में निवास करते हैं। Yes, when we take baptism, when we are entering into the water, all our sinful habits are gone along with that. जब हम बपतिस्मा लेने के लिए उस पानी में उतरते हैं, तो हमारी सारी पुरानी आदतें उस पानी में छूट जाती है। When we come out of the water, we become a new person. जब हम उस पानी से बाहर आते हैं, तब हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। Cleansed with the blood of Jesus Christ, and we are a new person. हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होते हैं और एक नए मनुष्य बनते हैं। Saul became Paul. शाऊल पौलुस बन गया। When he was filled with the power of God, he became a servant of God. जब वे प्रभु के सामर्थ्य से भर गया, वे परमेश्वर का सेवक बन When गया। Jesus took baptism and he came out of the water, he received the Holy Spirit. जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आते हैं, वे पवित्र आत्मा को पाते हैं। Yes, my friends, you can receive the baptism of the Holy Spirit even after coming out of the water when you take baptism. हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग भी पवित्र आत्मा को पा सकते हैं जब आप लोग बपतिस्मा लेकर उस पानी से बाहर आते हैं। Baptism is very important according to Bible. बाइबल के अनुसार बपतिस्मा बहुत जरूरी है। And Jesus had to obey that. What about you and me? We are simple people. We are जब ordinary यीशु people. उस आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप और मैं क्या हैं? हम लोग साधारण से मनुष्य Don't हैं। argue with unwanted things. बेफालतू में बहस ना करें। Trust and obey God's word. प्रभु के वचन पर भरोसा रख के उसका पालन As करो। Jesus did, you also do. जैसे यीशु ने किया, आप लोग भी करो। And your life will be a blessed life. आपका जीवन आशीष रहेगा। You have to obey God's word. आपको प्रभु के वचन का पालन करना है। This is not a doctrine. यह कोई सिद्धांत नहीं है। The Lord said,
whatever I did, you have to follow my way. प्रभु ने कहा, जो कुछ मैंने किया है तुम्हें उस मार्ग का अनुसरण करना Let us होगा। commit our lives to Jesus Christ right now. अभी आपके जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करो। Let us obey His way चलिए हम उनके मार्ग का पालन करें and receive the power of God और परमेश्वर की शक्ति को पाएं and shine for His glory. और उसकी महिमा के लिए चमकें। Shall we pray? चलिए हम प्रार्थना करें। A precious Heavenly Father, thank you Lord for your obedience for God's word. हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, आपने जो परमेश्वर की आज्ञा मानी उसके लिए Touch धन्यवाद। the hearts of all your children. आपके सभी बच्चों के मन को आप छूइए। Let them not argue with anything else. वे किसी से कभी बहस ना करें। Let them believe and obey your word, Father. वे आपके वचन पर भरोसा रखकर उसका पालन करें Let them पिता। receive all God's abundant blessings. उन्हें प्रभु का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Precious Enoch Singh and Sheena, happy wedding anniversary. Congratulations. प्रिय एनोक सिंह और शीना, शादी की सालगिरह मुबारक हो, बधाई हो। God bless you according to Ezekiel 36:11. I'll make you prosper more than before, says the Lord. परमेश्वर आप दोनों को यह हिजकेल 36:11 के अनुसार आशीष दे। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें पहले से भी अधिक समृद्ध बनाऊंगा। Father, bless Enoch Singh and Sheena with financial blessings, blessings in the family and spiritual grace. Sheena have great success in the OET exam and get the nursing job in the name of Jesus, and help her to get settled in the UK or Europe, Lord. In Jesus' name, prosper her, establish her, Lord. Amen. God bless you. हे पिता, एनोक सिंह और शीना को आर्थिक आशीष दीजिए, पारिवारिक सुख और आत्मिक अनुग्रह उन्हें प्रदान करें। शीना को OET परीक्षा में अपार सफलता मिले और यीशु के नाम से उसे नर्सिंग की नौकरी प्राप्त हो। प्रभु उन्हें UK या यूरोप में बसने में सहायता करें, उन्हें समृद्ध करें और स्थापित करें। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious brother Ashish and sister Seema Minj, happy 25th wedding anniversary. Congratulations. Praise the Lord. प्रिय भाई आशीष और बहन सीमा मिंज, विवाह की 25वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु की स्तुति हो। God bless you richly. According to Deuteronomy 15:10, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. व्यवस्था विवरण 15:10 के अनुसार परमेश्वर आप दोनों को बहुतायत की आशीष दे। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सभी कामों में और हर उस काम में जिसमें तुम हाथ डालोगे तुम्हें आशीष देगा। Father, bless them in everything. Whatever they have sown, let them receive the blessings from now on. Bless the jobs, give them a house and good health and prosperity in the family. हे पिता, उन्हें हर बात में आशीष दें। जो कुछ उन्होंने बोया है उसमें उन्हें अब से आशीष प्राप्त हो। उन्हें रोजगार दें, उन्हें घर दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और परिवार में समृद्धि प्रदान करें। Rishabh, have great success in the MCA and an excellent placement. ऋषभ को MCA परीक्षा में एक बड़ी सफलता और उसे शानदार प्लेसमेंट मिले। Mrs. Augusti, have good health. श्रीमती अगस्ती का स्वास्थ्य अच्छा रहे। And Sharoneka and family be blessed in Jesus' name. Amen. God bless you. और शिरीन इक्का और उनके परिवार को परमेश्वर की आशीषें मिलें। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।